Hello dear student, welcome back to my channel. Okay, today we are going to discuss a chapter which name is Basic Geometrical Ideas. It is for chapter number 4 of NCERT of class 6. So now let's start and see about what is given in the chapter. Okay, first thing is that the name basic geometrical idea is what? So first, what is the meaning of geometrical? So first, what is the meaning of geometry? So you can see that the term geometry is the English equivalent of the Greek word geometron. Means geometry is actual, geometry is actually equal to a Greek word which name is geometron. Okay, so now what is the meaning of geometron, which is a Greek word? So geometron is compiled of two words. First one is geo and second one is metron. Okay, now what is the meaning of geo and what is the meaning of metron? So meaning of geo means earth, means our earth. Okay, so meaning of geo is earth and meaning of the word metron is measurement. Metron is measurement, जिसे आप हिंदी में कहते हो नापना, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? नापना. मीन्स to measurement of the earth we use the word geometron. First, why we need to this term of geometry is that you know that there are many type of measurement we use like that. अगर आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है तो आपको इसका एरिया निकालना है, सो यू हैव टू यूज़ जियोमेट्री. अगर सपोज करो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और कहा गया इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, so for finding the perimeter we again use the word geometry. We going to the department of geometry of mathematics for finding the perimeter area of any geometrical shape. Okay, so geometry is nothing, it is the measurement of earth. Okay, in this chapter we are only discuss about how to measure the area of a shape, what type of shape, okay, and what is the perimeter of shape, different type of shape we discuss in this chapter. Okay, now let's see here the fundamental elements. Fundamental elements means मौलिक एलिमेंट तत्व जो होते हैं क्या हैं हमारे जियोमेट्री के. सो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री आर अ पॉइंट, एक पॉइंट है, अ लाइन, एक लाइन सेगमेंट है, अ लाइन सेगमेंट, एंड अ लाइन, एक द लाइन है, एंड अ रे. मीन्स देयर आर 4 फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ जियोमेट्री दैट आर अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट, एंड द लाइन एंड अ रे. वी डिस्कस these 4 fundamental elements of geometry one by one. Okay friends, now let's see here 2 definitions are written out of the 4 fundamental elements of the geometry, and these two are a point and line segment. Means here we are going to discuss about what is a point and what is a line segment. So let's see what is a point first of all. So basically a point represent a location or a position and it is dimensionless, and it is, यहाँ पे इस छूट गया है, it is dimensionless, it is dimensionless. It can be denoted by a single capital letter of English alphabet. So most thing is that what point represents. So point represent basically a location. जैसे देखो अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ क्या है? बहुत बड़ा है. अगर हम अर्थ की एक पोजीशन पे खड़े हैं, अगर आप ग्लोब में देखो कि हम कहाँ पे खड़े हैं, तो अगर ग्लोब की बात करें तो कोई बताएगा हम बस एक ऐसे पोजीशन पे खड़े हैं. ठीक है, एंड मोस्टली आप आजकल आप सब ने देखा होगा गूगल मैप लोग यूज़ करते हैं. गूगल मैप आप यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा गूगल मैप पे जो आपका लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाता है.
ऐसे और ऐसे करके छोटा सा पॉइंट ही दिखाता है कि एक्चुअल में आपकी लोकेशन इसी पॉइंट पे प्रेजेंट है। मीन्स बेसिकली पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज ओनली शो आवर लोकेशन एंड आवर पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। सपोज करो जैसे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने लिखा है पी, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर पी से। ऑलवेज याद रखना पॉइंट कैन बी डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर पी ओनली, नॉट सॉरी पी and any other capital letter of English alphabet and written as a point P। कैसे लिखते हैं, written as point P। जैसे सपोज करो मान लो हमने एक ऐसे पॉइंट बना लिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और फिर किसी लाइन में लिखना है इसे, मान लो हमने इसे और कोई नाम दे दिया, नहीं P ही नाम दिया, हमने N दे दिया। मान लो हमें किसी लाइन में लिखना है तो हम लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे पॉइंट वे रिटन लाइक दिस पॉइंट N। हम इसे ऐसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मीन बेसिकली पॉइंट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नॉट बाय ए स्मॉल लेटर। एंड व्हाट पॉइंट शो लोकेशन और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज डायमेंशनलेस। इट इज व्हाट, इट इज डायमेंशनलेस। मीन्स अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि अ पॉइंट हैज़ पॉइंट पी इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है A ऑफ 1 मीटर, ऐसा हम नहीं कर सकते। मीन्स पॉइंट के पास डायमेंशन लेस होने का मतलब ना ये सेंटीमीटर में हो सकता है, ना मीटर में हो सकता है, ना किलोमीटर में हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इट इज़ ओनली अ पॉइंट विच इज़ डायमेंशन लेस। मीन्स हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ अ पॉइंट। ओके, नाउ बात करते हैं, डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट आर डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एग्जाम में पूछा जाता है हाउ मैनी फिक्स्ड पॉइंट अ लाइन सेगमेंट हैज़। सो बेसिकली वी राइट अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इसकी लेंथ फिक्स होती है। जैसे कि हमने एक लाइन ऐसे लेंथ ड्रॉ कर दी इसे, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। बिकॉज इसकी लेंथ वी आर मेजर दिस लेंथ, हम मेजर कर सकते हैं इस लेंथ को। दैट्स वाई ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसके 2 एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, एक एंड पॉइंट A है और एक एंड पॉइंट B है। मीन्स इसके फर्दर हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इसके इधर इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरा होगा लाइन और रे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक लाइन है जिसकी लाइन सेगमेंट है, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड है एंड इट हैज़ 2 एंड पॉइंट। एंड पॉइंट A है और एक एंड पॉइंट क्या है, B है। एंड हाउ वी डिनोट, सपोज करो आपको एक लाइन सेगमेंट ऐसे लिख दिया गया, आप इसे कैसे डिनोट करोगे, हाउ यू डिनोट अ लाइन सेगमेंट इज दैट डिनोटेड बाई एम और इसे बार लगा दोगे ऐसे। इट इज़ द नोटेशन ऑफ राइटिंग ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। मीन्स किसी भी लाइन सेगमेंट का नोटेशन यही है फॉर राइटिंग। ओके, मीन्स द लाइन सेगमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही था कि इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ, ओके, एंड हैज़ 2 एंड पॉइंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टू दैट विच इज़ अ रे एंड अ लाइन। ठीक है, now here we are going to discuss other 2 definitions of fundamental element of geometry, and these 2 are a line and a ray. We discussed 2 out of the 4 which are a point and a line segment earlier. Here we are going to discuss about a line and a ray. Now let's see what is the definition of line. A line is made up of an infinite number of points. A line is made up of infinite numbers of points that extended indefinitely in both directions. Means a line can be made by infinite number of points. Means we can't count a number of points a line has, and it is extended in both directions. Means we are able to extend a line in both directions indefinitely. Means अनिश्चितता तक, जहाँ तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। एंड अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, लाइन की लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, विच इज़ नॉट मेजरेबल। मीन्स हम वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन बिकॉज
इट हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट है ही नहीं तो हम उसे कहाँ मेज़र करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखो क्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन बनाया गया। देखो लाइन बनाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हाउ टू ड्रॉ अ लाइन इज दैट वी मेक अ एरो ऑन बोथ साइड, दिस एरो सो दैट दिस विल इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन इनफाइनाइटली एंड इट इज़ आल्सो इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन इनफाइनाइटली। मीन्स हम इसको दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली। जैसे एक एग्जाम्पल से देखो आप यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ऐसे कि मान लो आपके लिए एक लाइन ऐसे बना दी गई है, ठीक है, तो आप इसे इनफाइनाइटली कैसे इंक्रीज कर सकते हो बोथ डायरेक्शन में। तो आप इधर भी इंक्रीज कर सकते हो, जहाँ तक आप जा सकते हो, इधर भी आप इंक्रीज कर सकते हो इनडेफिनेटली। सो हाउ वी कैन मेजर, जब इसका एंड पॉइंट है ही नहीं है तो हम कैसे मेजर करें। मान लो हम एक लेंथ मेजर कर लें, कोई आया इंक्रीज कर दिया, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए लाइन दैट कि वी कैन एक्सटेंड अ लाइन इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। तो लाइन का जब एंड पॉइंट है ही नहीं तो हम इसे मेजर नहीं कर सकते। देखो एक लाइन को यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, वी आर ड्रॉन अ लाइन हियर ए बी एंड रिटर्न एज, इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इन द फॉर्म ए बी एंड ए बी के ऊपर एरो बनाते हैं और एरो का डायरेक्शन दोनों साइड होना चाहिए। वी ड्रॉ द एरो ऑन ए बी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो ऑन बोथ साइड ऑफ ए बी, दिस टू डायरेक्शन शो दैट दिस इज अ लाइन which can be extended in both direction, that is direction A and direction B. So what we find that a line, first of thing that a line has no end point, इसके पास कोई end point नहीं है, it is made by infinite number of point, it is infinite number of point से मिलकर बना हुआ है and we extend line in both direction indefinitely, means हम इसको दोनों डायरेक्शन में indefinitely एक्सटेंड कर सकते हैं, जहाँ तक हम सोच सकते हैं उसके आगे तक भी, ठीक। Now come to the definition of ray. What is ray? ray क्या है, तो आप देखो रे क्या है। A ray is made up of infinite number of points. As the definition say that infinite, here it is also made up of infinite number of points. But what is the difference? The difference is here that but लेकिन it has a fixed end point. It has a fixed, देखो ये जो लिखा हुआ है it has a fixed end point, यहाँ पे इट हैज़ अ फिक्स्ड एंड, यहाँ पे सॉरी पॉइंट छूट गया है, यहाँ पे इट हैज़ अ फिक्स्ड एंड पॉइंट। मीन्स एक रे जो है उसके पास एक एंड पॉइंट है, मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट है एंड एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, मीन्स रे को हम एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं जहाँ तक हम सोच सकते हैं, बट एक वन पॉइंट इसका क्या है, फिक्स्ड है एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इनिशिएट पॉइंट ऑफ द रे। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम कहते हैं वी आर सेड दैट द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशिएट पॉइंट ऑफ रे। जैसे आप सभी ने देखा होगा टॉर्च, जब हम टॉर्च जलाते हैं तो आपने देखा होगा टॉर्च कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है टॉर्च, और यहाँ से एक ऐसे रे निकलती है। तो देखो ये रे इनफाइनाइटली बहुत आगे तक जा सकती है, जहाँ तक जा सकती है, मगर देखो रे पीछे नहीं दिख रही है। क्या टॉर्च की लाइट हमें पीछे दिखती है? Are we able to see the torch light in this direction? No, we can't say that. Means we can say that the light rays this started from this torch is start from this point. इस point से start हुआ है और इस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसका मतलब इसके पास ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज है फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि इसके इस साइड तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, पीछे तो लाइट दिख नहीं रही है, आगे ही दिख रही है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या है, इनफाइनाइट तक आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। तो देखो रे के बनाने का जो आइडिया है क्या है, रे कैसे, हाउ टू ड्रॉ अ रे, दिस ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक साइड हम एरो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। वी ड्रॉ एरो इन वन साइड एंड दैट साइड सो दैट वी आर एबल टू इंक्रीज दिस इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइट, जहाँ तक, जैसे कि देखो अगर मान लो हमने एक ऐसा रे बना दिया ऐसे, तो हम इसे इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली, बस हम इस डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं कर सकते, मीन्स वी कांट इंक्रीज फ्रॉम दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं कर सकते, बट उस डायरेक्शन में हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे इस साइड से डिनोट करते हैं, और जिस साइड ये एक्सटेंडेड हो सकता है, जिस साइड हमको एक्सटेंड करना उस साइड हम एरो ड्रॉ कर देते हैं, और जिस साइड हम एक्सटेंड नहीं करना उस साइड हम कोई भी एरो ड्रॉ नहीं करते। और जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, इट इज़ कॉल्ड इनिशिएट पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएट पॉइंट ऑफ द रे कहा जाता है। ओके, थैंक यू। Now here two other definitions are written, that are intersecting lines and next one is
So see that what are intersecting lines, and when two lines are said to be intersect. First one is that two lines are said to be intersecting lines if they have one common point. Means two lines are said to be intersecting line when they have a one common point. See that as the lines CD, DCD and AB has a one common point, which is point P. Point P is common in both, means the point P lies on AB and point P also lies on CD. Means these two lines have a one common point. Okay, therefore these two lines are called intersecting line, and here point P is intersecting point. अगर कोई पूछे दो लाइन्स के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, सो वी आर आवर आंसर इज दैट पॉइंट P is intersecting point. Means these two lines AB and CD are intersecting lines, and their point P is called intersecting point. It is not only for two lines, it is more than for two. अगर दो से भी ज़्यादा लाइन्स है तो देखो कैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं. देखो ऐसे बहुत सारे लाइन्स हैं, नॉट ओनली टू, मोर देन टू भी कर सकते हो. इन सभी लाइन्स, these lines have a one common point, this and this point is called intersecting point, and these lines are called intersecting lines. It's mean that intersecting lines are not bounded for only two lines. Two and more than two lines has a common point, then they are also said to be intersecting lines. Okay, next one is that parallel lines. When two lines are said to be parallel, see that two lines are said to be parallel if they do not have any common point. Means if they don't have any common point, then they are said to be parallel. Means if they don't have a common point, it means that they are not intersecting. So another definition of that, or they never intersect each other. Means अगर उनके पास common point नहीं है तो एक दूसरे को intersect नहीं कर रहे हैं. ठीक है. Means parallel line की दो definition है. First one is that they don't have any common point, and another definition is that they never intersect each other, are said to be parallel lines. तो पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने एक ABCD ड्रॉ किया और एक AB ड्रॉ किया. ये जो पॉइंट है, ये जो एरो है, दैट शो फॉर पैरेललिज्म. पैरेललिज्म को शो कर रहा है दैट ABCD एंड AB आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड हाउ वी रिटर्न, सो वी रिटर्न लाइक दिस, रिटर्न एज AB पैरेलल, दिस साइन इज फॉर पैरेलल टू CD, दिस साइन इज फॉर पैरेलल फॉर CD. वन मोर थिंग इज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सपोज करो एक लाइन AB है हमारे पास, ये पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, एंड CD पैरेलल है MN के. अगर हमने थ्री लाइंस कंसीडर किया, पहले हमने कहा कि इफ़ AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू MN, देन MN पैरेलल टू AB. MN किसके पैरेलल होगा, AB के पैरेलल होगा. मीन्स इफ़ three lines are given and one is parallel to other two, then rest two are also parallel to each other. मीन्स अगर दो थ्री लाइन्स है उसमें से कोई एक दो के पैरेलल है, तो जो दो बचे हुए हैं वो दोनों आपस में भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. सो ये डेफिनेशन थी स्टूडेंट अबाउट द बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ में. हमने 4 डेफिनेशंस पहले डिस्कस किए, दैट आर fundamental elements of geometry, and that's are a point, ray, line segment and line. After that we discuss intersecting lines and intersecting and parallel lines. I hope you enjoyed. Keep watching. Okay, thank you.